computer networks. Okay, your subject name is computer networks. Okay, so what is computer networks? See, with the help of networking only, we can connect all over the world, right? Connect हो सकते with the help of network only. So, with the help of computer networks, business decisions can be made even more quickly. Okay, with the help of email, with the help of various social networking sites, they all are connected with the network only. Okay, so in this chapter, we are going to see what is data communication, what is network, what is internet and protocols. Okay, so data communication. What is data communication? Okay, what is data communication? Data communication means when we communicate, we are sharing information only, right? When we communicate, we are sharing information only. Okay, so this sharing of information can be local or remote. जो हम लोग communicate करते हैं, we are sharing information. That is data communication. Okay, the sharing of information can be local or remote. Local communication क्या होता है? That local communication usually occurs face to face. जो communication है, that is local communication, right? A remote communication means that takes place over a distance. That takes place over a distance, like through phone calls, through email. Okay, through any medium we can communicate, right? With the help of network, computer networks, right? So communication can be local or remote. Local communication usually occurs face to face, and remote communication का meaning क्या? That takes place over distance. Okay. So for data communications to occur, the communicating devices must be a part of a communication system made up of a combination of hardware and software. See, data communication का meaning क्या है? What is data communication? Data communication are the exchange of data between two devices, right? तो कम्युनिकेशन होने के लिए जो कम्युनिकेटिंग जो डिवाइसेस है वो किसका पार्ट होना चाहिए? मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम. उसमें दोनों, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर भी है और उसमें सॉफ्टवेयर भी है. कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो दोनों का, जैसे अभी फॉर एग्जांपल थ्रू मेल यू कैन कम्युनिकेट, लाइक यू कैन सेंड द मेल. ओके, तो उसमें दोनों यूज हो रहा है. मेल के लिए यू आर यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, और पीसी के जो हार्डवेयर पार्ट्स यूज हुए. ठीक है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, हार्डवेयर मीन्स फिजिकल इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम्स होता है. लाइक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर पार्ट्स क्या है? रैम हो गया, मदरबोर्ड है, ठीक है, फैन है, पावर सप्लाई है, प्रोसेसर है. ये सब क्या है? हार्डवेयर है ना, राइट? सॉफ्टवेयर क्या है? जो हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं, वेब ब्राउजर वी आर यूजिंग द एप्लीकेशंस. ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करे तुम लोग, विंडोज हो गया, ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 8, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन होने के लिए, फॉर कम्युनिकेशन टू अकर, क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन जो है वो दो पार्ट में, मतलब इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. Now see, the effectiveness of a data communication system depends on four fundamental characteristics: delivery, accuracy, timeliness and jitter. ठीक है, जो effectiveness है डेटा कम्युनिकेशन का, डेटा मतलब how we can communicate very effectively. ठीक है, ये फोर कंपोनेंट्स पे डिपेंड है. ठीक है, डिलीवरी मीन्स सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन. अगर तुम कोई डेटा सेंड कर रहे हो, द डेटा शुड बी रीच टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, राइट? जब भी मैं बोलूंगी सिस्टम इफेक्टिव है, ठीक है, तो फॉर डेटा कम्युनिकेशन मीन्स फॉर शेयरिंग ऑफ मैसेजेस. डेटा कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ मैसेजेस ओनली ना, राइट? टू मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग. So that depends on four characteristics. Okay, the delivery means if the system must deliver the data to the correct destination only, then only we can say that system is effective. Okay, the data must be received by the correct receiver, that is delivery. Delivery क्या एक component है, component of data communication है. ठीक है,
अगर if the system is delivering the data to the correct destination, then the system is effective. Accuracy, accuracy means the system must deliver data to the system must deliver the data accurately, correct data होना चाहिए. Okay, if the data have been altered in transmission, अगर सपोज ट्रांसमिट होने के टाइम पे डेटा ऑल्टर हो गया, सपोज मैं कुछ मेल सेंड कर रही तो मेल कैसे ट्रेवल हो रहा है थ्रू नेटवर्क्स ओनली, ठीक है, और रिसीवर को जाके रिसीव्ड हो जाएगा. तो मीन्स अगर वाइल इन द नेटवर्क क्या हो गया, कुछ ऑल्टर हो गया, डेटा में कुछ चेंज हो गया, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, अनयूजेबल, वो डेटा का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. ठीक है, तो एक्यूरेसी मीन द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली. अब वो एक्यूरेटली डिलीवर कर रहा है मीन्स करेक्ट डेटा डिलीवर हो रहा है एज इट इज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मीन्स द सिस्टम इज effective. तो एक कंपोनेंट है ये, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. ओके, timeliness means the system must deliver data in a timely manner. Timely manner में डेटा डिलीवर होना चाहिए. If the data delivered late, okay, the data is of no use, okay, or of little use. So for example, see audio and video. अभी audio data means not only text, data means not only text, हाँ, images हो गया, images, audio, video, text, number, ये क्या है, this all are the examples of data only, right? By looking at the audio, मतलब by listening audio, by looking at the video, okay, and by entering anything text, numbers, ठीक है, we are getting the information only. अभी जो ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, नंबर्स है, इमेजेस है, ये सब डेटा ही है, बिकॉज ये सब देख के मुझे क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन ही मिल रहा है ना. तो ये सब डेटा ही है. डेटा का मीनिंग ये नहीं है दैट इज नॉट ओनली टेक्स्ट. ठीक है, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है, तुम्हारा डेटा ही है. ठीक है, इस जिससे मीन्स देख के तुमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है. तो टाइमलीनेस मीन्स क्या है, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if the data delivered late, वो उसका कोई यूज नहीं, आर यूजलेस. ओके, for let's take an example here. In case of video and audio, timely delivery means delivering data as they are produced. अभी देखो ऑडियो में if you have recorded anything, ठीक है, तो जैसा वो ये हुआ है, मतलब जैसा रिकॉर्ड हुआ है वो, मतलब वैसा वो सामने वाले को रिसीव नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, टाइम का इश्यू हो रहा है. तो क्या होगा, उसका कोई यूज रहेगा नहीं रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो है. ठीक है, अगर वीडियो देखो, वीडियो जो बनता है, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर तुम लोग देखते होंगे, मूवी या कोई भी वीडियो, वो वीडियो में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स होते हैं. समझ रहे हो बात को, वीडियो जो है अभी अलग अलग सीन चेंज होते हैं कि नहीं, अलग अलग सीन चेंज होते हैं वीडियो में, तो अलग अलग फ्रेम्स यू कैन से वो चेंज होता है. तो अगर उसमें अगर उसका टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, लेट डिलीवर हो रहा है वो, तो कोई उसका मीनिंग रह जाएगा, नहीं रहेगा. ठीक है, तो मीन्स इन वीडियो, इन केस ऑफ वीडियो, अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई डिले हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑफ नो यूज. तो टाइमलीनेस का मीनिंग ये है, द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा इन अ टाइमली मैनर. इफ द डेटा डिलीवर्ड लेट, द डेटा इज ऑफ नो यूज और लिटिल यूज. एंड वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ audio and video. Okay, in case of audio and video, timely delivery means delivering data as they are produced, okay, in the same order that they are produced, and without any without significant delay. Okay, now jitter. Okay, this is one of the component of data communication only. तो jitter का meaning क्या है, jitter means it refers to the variation in the packet arrival time. See, अगर फॉर एग्जाम्पल पैकेट्स का मीनिंग क्या होता है, jitter means variation in the packet arrival time. यहाँ पे term I am writing this. Jitter refers to the variation in the packet arrival time. Suppose we are sending some messages, okay, like we are sending email or we are searching anything on the internet. तो क्या होता है, वो ट्रैवल होता है थ्रू नेटवर्क्स ट्रैवल होता है, और जो डेटाबेस है वहां से डेटा फेच होता है और वेब ब्राउजर के पेज पे तुमको दिखाई देता है.
राइट। तो अगर जिटर का मीनिंग क्या है, वेरिएशन दी पैकेट अराइवल टाइम। पैकेट मीन्स तुम्हारे मैसेजेस जो है ना नेटवर्क पे, वो पैकेट्स में जाते हैं, मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होके जाते हैं। पैकेट्स मीन्स स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक होके जाते हैं। पैकेट्स में डेटा ट्रेवल होता है, ठीक है, इन अ नेटवर्क। तो अगर वेरिएशन आ, तुम्हारे मैसेजेस जो जा रहे हैं ब्रेक होके वन बाय वन जो नेटवर्क, ठीक है, उसको पैकेट बोलते हैं हम लोग। हाँ, पैकेट, स्मॉल स्मॉल मैसेजेस ब्रेक होके जा रहे हैं वन बाय वन, ठीक है, समझो 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट ऐसा। अगर वो पैकेट में एक पूरा मैसेज है, समझो 2 बाइट्स का डेटा है, ठीक है, पहले 1 बाइट जा रहा है सपोज, फिर सेकेंड बाइट जा रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है उनके अराइवल टाइम में, दैट इज कॉल्ड जिटर। तो जिटर का मीनिंग क्या है, इट रिफर्स टू द वेरिएशन इन दी पैकेट अराइवल टाइम। अगर पैकेट अराइवल टाइम में क्या है, वेरिएशन है, डिफरेंस है, तो दैट इज कॉल्ड एज जिटर, ठीक है। सी, अगर देर इज, फॉर एग्जाम्पल इट इज द jitter, it is the uneven delay in the delivery of audio और वीडियो पैकेट। अगर ऑडियो है या कोई वीडियो है, अनइवन डिले उसमें हो रहा है, ठीक है, ऑडियो जैसे प्रोड्यूस्ड हुआ है वैसा तुमको नहीं सुनाई में आ रहा है, ठीक है, या वीडियो में क्या है, अनइवन डिले है, आगे पीछे सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड जिटर। कभी कभी होता है, देखो वीडियो हम लोग को प्रॉपर सुनाई नहीं देता, आगे पीछे होता है, मीन्स क्या हो रहा है, वो जिटर हो रहा है। Means it is the uneven delay in the delivery of audio और वीडियो पैकेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक वीडियो है, ठीक है, वीडियो किसमें है, वीडियो इज ए कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स ओनली, अलग अलग सीन्स होते हैं ना वीडियो में, ठीक है। तो यू वो जो अलग अलग सीन है तुम उसको पैकेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, यू कैन से पैकेट, ठीक है। तो पैकेट में समझो फर्स्ट पैकेट में क्या है, यू आर सेंडिंग एट 3 ms डिले। फर्स्ट पैकेट, इफ सम ऑफ द पैकेट्स अराइव विथ 3 ms डिले, और दूसरे पैकेट में 4 ms डिले हो रहा है, तो क्या होगा, अनइवन क्वालिटी हो जाएगा वीडियो का, ठीक है, अनइवन क्वालिटी हो जाएगा वीडियो का। तो जिटर का मीनिंग ही क्या है, इट इज द अनइवन डिले इन द डिलीवरी ऑफ ऑडियो और वीडियो पैकेट्स, ठीक है। कोई पैकेट्स का 3 ms डिले, कोई पैकेट का 4 ms डिले, तो दे विल बी द, क्या होगा, अनइवन क्वालिटी इन द वीडियो, ठीक है। So these are the components of data communication. The effectiveness of a data communication system based on 4 fundamental characteristics, इस पे डिपेंड है, ठीक है, डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस एंड जिटर। अगर ये कंपोनेंट प्रॉपर मीन्स होगा, प्रॉपर डिलीवर होगा ऑन टाइम टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, करेक्ट डेटा होगा, एक्यूरेसी मीन्स करेक्ट डेटा, टाइमलीनेस मीन्स, टाइमलीनेस का क्या मीनिंग है, system must deliver data in a timely manner. Jitter means क्या, uneven delay in the delivery of audio video packet। तो डेटा कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, दिस 4 कंपोनेंट्स, ये 4 कंपोनेंट्स पे डिपेंड है। ना, ये भी कंपोनेंट्स है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज 5 कंपोनेंट्स: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल। Data communication, you have understood what is data communication. Data communication means exchange of data between two devices. Data communication का मीनिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। तो वाया सम फॉर्म ऑफ, या अभी एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस कैसे होगा, या तो कोई ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होगा, लाइक कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है, या वायर केबल के थ्रू होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। So the components of data communication are message, sender, receiver, transmission medium and protocol, ठीक है। तो मैसेज मीन्स, मैसेज इज द इंफॉर्मेशन, राइट। मैसेज क्या है, इट इज द इंफॉर्मेशन ओनली जो कम्युनिकेट करना है मुझे, मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो मैसेज के एग्जांपल्स क्या होंगे, लाइक टेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ मैसेजेस, एग्जांपल ऑफ मैसेज क्या है, टेक्स्ट, ये सब मैसेज ही है ना, टेक्स्ट, नंबर्स, कोई भी फॉर्म में हो सकता है मैसेज, पिक्चर्स,
audio and video. Okay, the message is information to be communicated. Examples क्या हो सकते हैं, message क्या हो सकता है? It can be in the form of text, numbers, pictures, audio and video. ठीक है. Now next, sender. Sender means the sender is a device that sends the data message. जो मैसेज सेंड करता है that is called as sender. Okay, see in the figure, sender, receiver. A sender or receiver, sender is sending the message to the receiver. Okay, or how this message is traveling from sender to receiver? Through some medium. कोई मीडियम तो होगा ना, लाइक वायर केबल के थ्रू होता है, इन केस ऑफ वाईफाई कनेक्शन केबल से कनेक्ट होता है, लाइक ठीक है. या तुम्हारा मेल जो है वो तुम्हारा नेटवर्क से कनेक्टेड है. तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई तो मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो डेटा को कैरी करता है. ठीक है, तो सेंडर रिसीवर ये ट्रांसमिशन मीडियम है. मैसेज ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम. ठीक है, अभी नाउ सी what I am saying, sender. Okay, sender is a device that sends the data message. ठीक है, it can be a sender कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर भी सेंडर हो सकता है. if the computer is sending the message, तो कंप्यूटर एग्जांपल हो गया सेंडर का. या तुम वीडियो कैमरा यूज कर रहे हो, ठीक है, वो भी तुम्हारा सेंडर हो गया. तुम टेलीफोन हैंडसेट यूज कर रहे हो, वो भी तुम्हारा सेंडर हो गया. ठीक है, तो सेंडर मीन्स कोई भी डिवाइस जो मैसेज सेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंडर. रिसीवर मीन्स the receiver is a device that receives the message. कोई भी डिवाइस ऐसा जो रिसीव करता है मैसेज, तो कोई भी हो सकता है. इट कैन बी अ कंप्यूटर, द कंप्यूटर रिसीविंग द मैसेज, तो वो रिसीवर है. टेलीफोन हैंडसेट, टेलीविजन एंड सो ऑन. ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स इट इज अ फिजिकल पाथ by which a message travels from sender to receiver. ट्रांसमिशन मीडियम में एक फिजिकल पाथ है by which a message travels from sender to receiver. ठीक है, sender to receiver जो पाथ है that is called as transmission medium. तो ट्रांसमिशन मीडियम का एग्जांपल क्या होगा? What are the examples of transmission medium? अभी सेंडर टू रिसीवर, सेंडर इज सेंडिंग द मैसेज, रिसीवर विल रिसीव द मैसेज, राइट. तो मैसेज कैसे ट्रैवल हो रहा है? थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम ओनली. ठीक है, द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड बहुत सारे वायर्स है, लाइक अभी मैं नेम नहीं बोलूंगी, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर है. ठीक है, लाइक तुम्हारा देखो पीसी में भी कनेक्शन है, डिफरेंट वायर्स अटैच है, या तुम्हारे टेलीविजन पे डिफरेंट वायर्स अटैच है, दैट इज ट्रांसमिशन मीडियम ओनली. ओके, तो लाइक डिफरेंट टाइप्स के वायर्स है, ट्विस्टेड पैर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है. अलग अलग केबल्स के नेम है. हाँ, ये ट्विस्टेड पैर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स. ठीक है, तो ये सब क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम के एग्जांपल है. मींस बाय विच ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? मतलब एक पाथ है जिससे मैसेज ट्रेवल्स होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस. प्रोटोकॉल. What is protocol? Protocol means set of rules and regulations. Protocols means set of rules and regulations. Okay, for data communication. So you can say it represents an agreement. Rules and regulation क्या follow होना चाहिए for data communication? That is called as protocols. ठीक है, so it is a type of agreement between the communicating devices. Communicating devices means अभी मीन्स कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, बोथ सेंडर एंड रिसीवर दोनों इन्वॉल्व है कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस में. ठीक है, बोथ आर कम्युनिकेटिंग. तो एक टाइप का ये एग्रीमेंट है. ठीक है, समझो अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, अगर विदाउट अ प्रोटोकॉल क्या होगा? टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड. ठीक है, टू डिवाइसेस मे बी कनेक्टेड बट दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग. कैसे हुआ ये ऐसा? सी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है. ठीक है, विदाउट प्रोटोकॉल मींस इट इज सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन. ठीक है, so without a protocol two devices may be connected but not communicating. For example,
a person speaking French, okay, a person speaking French cannot be understood by a person who speaks only, you can say English, okay. अभी फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है तो कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय पर्सन जिसको सिर्फ इंग्लिश आता है या जापानीज आता है, समझ रहे बात को। तो कम्युनिकेटिंग जो डिवाइसेस है, जो मतलब जो फॉर एग्जांपल द टू पर्सन आर कम्युनिकेटिंग, तो दोनों को लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर सामने वाला फ्रेंच बोलता है और अनदर पर्सन को फ्रेंच नहीं आता है, सिर्फ जापानीज आता है, तो क्या होगा, दोनों आपस में कम्युनिकेट है, मीन्स दे आर कम्युनिकेटिंग, बट क्या होगा, दोनों आपस में कनेक्टेड है, सॉरी, बट नॉट कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो वैसी सिस्टम का भी यही रूल है। प्रोटोकॉल का मीनिंग है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ set of rules that you use for the data communication. That means it represents an agreement between the devices, between the communicating devices. Both the devices should be agreed on certain terms and conditions. जब तो लोग आपस में सेंड और रिसीव कर पाएंगे डेटा, ठीक है। तो एक इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि अगर एक पर्सन है जो स्पीक, इफ अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच, फ्रेंच कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु स्पीक्स ओनली जापानीज, ठीक है। तो अगर डिवाइस को कम्युनिकेट करना है आपस में, ठीक है, तो कुछ उसमें प्रोटोकॉल्स होना चाहिए। प्रोटोकॉल्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, अदरवाइज दोनों डिवाइस आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम हैज 5 कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स है, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम एंड प्रोटोकॉल। What we have seen till now, what is data communication? Okay, it is the exchange of data between two devices by some form of transmission medium such as wire, cable. Okay, then we have seen this effectiveness of a data communication system depends on 4 fundamental characteristics: delivery, accuracy, timeliness, and jitter. Okay, then communication, data communication system has 5 components: message, sender, receiver, transmission medium, and protocol. Okay. What is protocol? Write in the chat box, students, in one sentence. What is protocol? It is a set of, yes, right, set of rules. Yes, it is a protocol means it is a set of rules. Okay. It represents an agreement between the communicating devices. एक टाइप का agreement है between the communicating devices. Communicating devices means जो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लाइक सेंडर एंड रिसीवर। कोई भी हो सकता है सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर में कोई भी हो सकता है, 2 कंप्यूटर्स हो सकते हैं या 2 पर्सन हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। बट जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है, जो भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है, उनको क्या करना चाहिए, कुछ टाइप के रूल्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन होने के लिए। नाउ डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सी, डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो डेटा क्या है, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, images, audio and video, right? So data comes in different forms. Information today comes in different forms such as text, numbers, images, audio and video, ठीक है।
सी टेक्स्ट मीन्स क्या? इन डेटा कम्युनिकेशन टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ बीट पैटर्न। कौन सा पैटर्न? बीट। ठीक है। अभी डेटा कम्युनिकेशन में बार बार अगर आई एम सेइंग, मतलब अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन टू डिवाइसेस। ओके, नाउ सी, इन डेटा कम्युनिकेशन text is represented as a beat pattern. Beat means a sequence of zeros or ones. Beat का मीनिंग यही होता है ना? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स विच लैंग्वेज? ओनली बाइनरी लैंग्वेज ना, दैट इज वन और जीरो। तो जो टेक्स्ट है इन डेटा कम्युनिकेशन, टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ बीट पैटर्न। बीट पैटर्न मीन्स अ सीक्वेंस ऑफ जीरोस और वंस। ओके, एंड ईच सेट, जो सेट बनेगा, फॉर एग्जांपल तुमने कुछ भी टाइप किए, हेलो या SYIT, तो किस में कन्वर्ट होगा? वो बीट पैटर्न में, आइदर जीरोस और वंस में। तो वो सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? जो सेट बनेगा बीट का, दैट सेट इज कॉल्ड एज ए कोड। वो सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी, तो दो कोडिंग के स्टैंडर्ड है। जो कोडिंग के स्टैंडर्ड है ना, वो दो है, एक है यूनिकोड, एक है एस्काई। एक है यूनिकोड और एक एस्काई। टेक्स्ट रिप्रेजेंट के दो फॉर्म है, एक यूनिकोड है, एक एस्काई है। ठीक है, यूनिकोड जो है, यूनिकोड वो 32 बिट्स, इट इज यूज टू मीन 32 बिट्स को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है, 32 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। यूनिकोड represent which uses 32 bits to represent a symbol or character used in any language in the world। समझ रहे बात को? 32 बिट्स, 32 बिट्स को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है, 32 बिट्स के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है यूनिकोड। और जो ये हम अस्काई है, अस्काई का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये जो है अस्काई है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 127, 127, लेट मी राइट हियर फर्स्ट, 127 कैरेक्टर्स इन यूनिकोड। सी, यूनिकोड जो है, यूनिकोड जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आई विल शो क्या है यूनिकोड और अस्काई। यूनिकोड क्या करता है? 32 बिट्स को रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 32 बिट्स कैरेक्टर। और अस्काई जो है, अस्काई क्या करता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्स्ट 127 कैरेक्टर्स इन यूनिकोड। फर्स्ट 127 कैरेक्टर्स इन यूनिकोड, ये 32 बिट्स। अच्छा, ओके, नाउ आंसर दिस, we will see what is Unicode ASCII. First answer this. One bit, one byte equal to how many bits? One byte is equal to how many bits? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एट बिट्स, राइट। वन बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो ये यूनिकोड क्या है? 32 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 32 बिट्स के सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। और अस्काई फर्स्ट 127 कैरेक्टर्स इन यूनिकोड। फर्स्ट 127 कैरेक्टर्स इन यूनिकोड। ओके,
Okay, we will see in the next lecture this one. What is we will see in detail what is Unicode and ASCII table. We will see. Okay. Unicode. Okay. Now see numbering system. Okay. अभी देखो डेटा जो है तुम्हारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ कौन सा है डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट नंबर्स इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो टेक्स्ट में वी हैव सीन क्या देखे टेक्स्ट में हम लोग ने टेक्स्ट रिप्रेजेंट होता है एज सीक्वेंस ऑफ बिट्स 0 और 1 ठीक है उसमें दो स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट दो स्टैंडर्ड्स में होता है यूनिकोड ASCII okay a table I will show in the next lecture now we will see numbers okay numbers क्या है see numbers are also represented by beat patterns ठीक है beat pattern means 1 और 0 तो numbers में क्या होता है सी डिफरेंट टाइप्स के नंबरिंग सिस्टम है बाइनरी है ऑक्टल है डेसिमल है हेक्साडेसिमल है ठीक है तो बाइनरी का जो बेस है 2 होता है ऑक्टल का बेस 8 डेसिमल बेस इज 10 हेक्साडेसिमल का क्या होता है 16 होता है और सिंबल क्या है बाइनरी के लिए 0 और 1 ही होता है ना राइट ऑक्टल 8 है मींस 0 to 7 होगा डेसिमल 10 है तो 0 to 9 होगा हेक्साडेसिमल 16 है तो 0 to 9 a means 10 ना a represents 10 ना a 10 b 11 c 12 d 13 e 14 सॉरी 9 a 10 11 12 13 14 15 ठीक है तो कितना हो गया 15 हो गया ठीक है तो 1 2 और ये 0 भी तो है ना 16 होगा टोटल राइट A represents 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15 तो ये डिफरेंट टाइप्स के नंबरिंग सिस्टम है बाइनरी ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल Till now any doubt is it clear to all what is data communication then characteristics of data communication and the components of data communication okay this data representation we will complete in the next lecture till here is it clear to all data communication characteristics uske and components clear है okay